ایک لڑکے نے امیری کا جھانسا دیکھ کر مجھ سے دھوکے سے شادی کر لی۔ مجھے کسی نے بتایا کہ میرا شوہر لڑکیوں کی عزت لوٹ کر اس کا قتل کر دیتا ہے۔ میرا شوہر رات کے 2 بجے کام کے سلسلے میں کہیں جا رہا تھا۔ جب میں نے اس کا پیچھا کیا تو وہ ایک کوٹھی میں داخل ہوا۔ جب میں نے اندر جا کر دیکھا تو میرا شوہر لڑکی کی لاش کو گھسیٹ رہا تھا۔ اسے دیکھتے ہی میری روح کانپ گئی۔ وہ تو میری فرحانہ انتہائی خوبصورت اور حسین جسم کی مالک تھی۔ اس کی عمر کا اندازہ لگانا مشکل تھا، پھر بھی اسے 21-22 سال کا کہا جا سکتا تھا۔ لمبا قد، گوری رنگت اور اس پر کالے کالے بال اسے مزید حسین بنائے ہوئے تھے، بلکہ ایسا لگتا تھا جیسے ساری دنیا کا حسن اس پر آ کر ختم ہو رہا ہو۔ آذر سے اس کی ملاقات بس اسٹاپ پر ہی ہوئی تھی۔ اس دن فرحانہ بس کے انتظار میں کھڑی تھی۔ گرمیاں تھی، اس لیے بس اسٹاپ پر اکا دکا ہی افراد تھے۔ چند اوباش قسم کے نوجوان اسے تنگ کر رہے تھے، اس پر فحش فکرے کس رہے تھے۔ اسی وقت وہاں سے کار کا گزر ہوا تھا اور اس نے فرحانہ کو ان اوباش نوجوانوں سے بچایا تھا اور اسے لفٹ دی تھی۔ اس دن سے وہ ایک دوسرے کے گہرے دوست بن گئے تھے اور دوستی محبت پر آ کر ختم ہو گئی تھی۔ اب وہ دونوں ایک دوسرے سے شدید محبت کرتے تھے اور شادی کرنا چاہتے تھے، لیکن فرحانہ کے والدین نے اس کا رشتہ بچپن میں ہی اس کے خالہ زاد ارباز سے کر دیا تھا، مگر فرحانہ ارباز کی بجائے آذر سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ اس کے گھر والے اس بے جوڑ شادی پر اعتراض کریں گے۔ اس نے اس خدشے کا اظہار آذر سے بھی کر دیا تھا اور آذر نے کہا تھا کہ وہ چند دن تک سوچ کر اس کا حل نکالے گا۔ وہ خود بھی نہیں چاہتا تھا کہ وہ فرحانہ سے شادی کرے۔ وہ ایک بدگماش اور ہوس پرست انسان تھا۔ بہت ساری لڑکیوں کی عزتیں لوٹنے کے بعد بھی اس کی ہوس ختم نہ ہوئی تھی۔ جب سے اجنبی کا فون موصول ہوا تھا، اس وقت سے وہ انگاروں پر لوٹ رہا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اجنبی کون تھا اور فرحانہ کا کیا لگتا ہے۔ اس نے جب اس خدشے کا اظہار فرحانہ سے کیا تو فرحانہ بھی پریشان ہو گئی۔ کون ہو سکتا ہے ایسا آدمی جو مجھے تم سے ملنے سے منع کر رہا ہے؟ آذر تشویش بھرے لہجے میں بولا۔ کون ہو سکتا ہے وہ؟ کہیں تمہارا کوئی دشمن تو نہیں ہے؟ فرحانہ نے پوچھا۔ نہیں، میرا تو کوئی دشمن نہیں ہے، آذر پرسوچ لہجے میں بولا۔ خیر، ایک بار وہ میرے سامنے آ جائے میں اسے پولیس کے حوالے کر دوں گا۔ تم پریشان مت ہو، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تم نے ابھی تک شادی کے بارے میں جواب نہیں دیا۔ فرحانہ نے گفتگو کا موضوع بدلا۔ گھر والے مجھ پر دباؤ ڈال رہے ہیں کہ میں ارباز سے شادی کر لوں۔ آذر، ہمارے پاس وقت بہت کم ہے کہ جلد از جلد شادی کر لیں۔ میں تمہاری خاطر وہ گھر بھی چھوڑنے کو تیار ہوں۔ بولو، تمہارا کیا فیصلہ ہے؟ ٹھیک ہے، میرا فیصلہ بھی یہی ہے، آذر نے کسی اور خیال کے تحت کہا۔ تم کل ٹھیک رات 12 بجے میری کورنگی والی کوٹھی پر پہنچ جانا۔ میں تمہارا وہی انتظار کروں گا۔ میں شادی کے جب تک انتظامات مکمل کر لوں گا۔ ٹھیک ہے، میں آ جاؤں گی، فرحانہ نے کہا، اور پھر انہوں نے آئس کریم کھائی اور ہوٹل سے باہر نکلے اور علیحدہ علیحدہ سمتوں کی طرف چل دیے۔ عروسہ، میں کاروبار کے سلسلے میں کوئٹہ جا رہا ہوں، 2 دن کے بعد آؤں گا، عروسہ نے دوسرے دن دفتر جانے سے پہلے کہا۔ تم اس دوران گھر جانا چاہو تو جا سکتی ہو۔ آذر، کیا خیال ہے اس بار میں بھی تمہارے ساتھ نہ چلوں؟ عروسہ نے کہا۔ میں بھی اس دوران کوئٹہ کی سیر کر لوں گی۔ نہیں اروبہ، میں تمہیں پھر کسی دن لے چلوں گا، آذر نے کہا۔ تمہارا میرے ساتھ کاروباری ٹور پر جانا مناسب نہیں ہے۔ اچھا، میں اب چلتا ہوں، میرا بریف کیس شام کو تیار رکھنا۔ اتنا کہہ کر آذر دفتر چلا گیا، جبکہ عروسہ نے سوچ لیا تھا کہ وہ کیا کرے گی۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ یقیناً کچھ ہونے والا ہے۔ شام کو جب آذر واپس آیا تو عروسہ اس کا بریف کیس تیار کر چکی تھی۔ وہ اسے خدا حافظ کہہ کر گھر سے باہر نکلا اور ٹیکسی کے ذریعے آگے بڑھ گیا۔ عروسہ نے بھی کار نکالی اور اس کے تعاقب میں روانہ ہو گئی۔ وہ دیکھنا چاہتی تھی کہ آذر کہاں جاتا ہے اور کس لڑکی کے ساتھ گھومتا ہے۔ اس نے ٹیکسی اور کار کے درمیان مناسب فاصلہ رکھا تھا تاکہ آذر کو شک نہ گزرے۔ ٹیکسی مختلف سڑکوں سے گزرنے کے بعد کورنگی کی طرف مڑ گئی اور ایک کالونی میں داخل ہو گئی۔ ایک کوٹھی کے سامنے رکنے کے بعد آذر نے کرایہ ادا کیا اور بریف کیس اٹھائے وہ اس کوٹھی کے اندر چلا گیا۔ عروسہ نے چند لمحے وہاں رکنے کے بعد کار پیچھے کی اور واپس گھر آ گئی۔ اس کا دل رو رہا تھا کہ اس نے دولت اور چند آسائشوں کی خاطر اونچی اڑان اڑنے کی کوشش کی تھی۔ اس نے جو سپنا دیکھا وہ سپنا اب اذیت ناک حقیقت بن کر اسے
डस रहा था। दुनियावी आसाइशों की खातिर उसने अपने वालिदैन के एतमाद को ठेस पहुंचाई थी। काश उसे पहले ही मालूम हो जाता कि आजर एक अयाश और बदगुमाश इंसान है, तो वो दूसरी बार कभी भी उसे ना मिलती। लेकिन अब क्या हो सकता था? उसे आजर से नफरत हो रही थी। उसके दिमाग में एक आतिश फिशां फट रहा था। अगर वो उस लड़की को अपनी आंखों से आजर के साथ ना देखती तो शायद फोन करने वाले अजनबी की बात पर हरगिज यकीन ना करती। उसने फैसला कर लिया था कि वो आजर से दो टोक बात करेगी। 2 दिन बाद जब आजर वापस आया तो उसके चेहरे का रंग कुछ बदला बदला सा था। अरूसा, क्या बात है, तुम कुछ परेशान हो? उसने अरूसा से कहा। उसने उसका हाथ पकड़ना चाहा लेकिन अरूसा ने हाथ छुड़ा लिया। आजर चौंक कर उसे देखने लगा। क्या बात है अरूसा? मुझे छूने की कोशिश मत करो आजर। अरूसा फट पड़ी। मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जान चुकी हूँ। क्या जान चुकी हो? आजर के चेहरे पर रंग आने जाने लगे। यही कि तुम एक इंतहाई घटिया और बुरे आदमी हो। अरूसा ने कहा, तुम लड़कियों की इज्जतों के लुटेरे हो और ऐसे आदमी के साथ मैं हरगिज रहना पसंद नहीं करूंगी। तो मुझे आजाद कर दो। तो ये बात है, आजर ने हंकारा भरा। तो तुम्हें किसी ने मेरे बारे में सब कुछ बता दिया है। मुझे मालूम है कि तुम्हें ये सब कुछ किसने बताया होगा। मैं उस हरामजादे से निमट लूंगा। उसकी आंखें खून की कबूतर की मानिंद सुर्ख हो गई थी। मैं तुम्हें आजादी जरूर दूंगा, लेकिन मौत के बाद। क्या मतलब? अरूसा घबराकर पीछे हटी। मैं तुम्हें कत्ल करके तुम्हारी लाश गायब कर दूंगा। आजर ने जेब से रिवॉल्वर निकालते हुए कहा, मैं काफी अरसे से तुमसे छुटकारा पाने का सोच रहा था और आज रात में वाकई तुम्हें कत्ल कर देता। खैर, वो आहिस्ता आहिस्ता अरूसा की तरफ बढ़ने लगा। अरूसा कांपती टांगों के साथ पीछे हटने लगी। उसके चेहरे पर वहशत छा गई थी। देखो आजर, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? अरूसा घबरा कर बोली। मुझे मत मारो। अगर मैं तुम्हें छोड़ दूंगा तो तुम मेरे बारे में पुलिस को बता सकती हो। आजर ने वहशत भरे लहजे में कहा, इसलिए तुम्हारा जिंदा रहना मेरे लिए किसी खतरे से कम नहीं है। अरूसा पीछे हटते हटते दीवार से जा लगी। उसके हलक से घुटी घुटी चीख निकल गई। आजर उसके करीब पहुंच गया। उसके रिवॉल्वर का रुख अरूसा के सीने की तरफ था। अरूसा ने खौफ के मारे आंखें बंद कर ली। मैं तुम्हें जिंदगी से ही आजाद कर रहा हूँ। इससे पहले कि वो ट्रैगर दबाता, उसी वक्त गोली चली और अरूसा के हलक से चीख निकल गई। साथ ही आजर के हलक से भी दिल खराश चीख बुलंद हुई। वो नीचे गिरा और तड़पने लगा। अरूसा ने खौफ की शिद्दत से बंद आंखें खोली तो उसने देखा कि आजर नीचे गिरा साकत पड़ चुका है। सामने ही दरवाजे पर एक पुलिस वाला खड़ा था। उसके हाथ में रिवॉल्वर था जिसकी नाल में से हल्का हल्का धुआं निकल रहा था। मुझे पता था कि ये यही होगा, इंस्पेक्टर ने कहा। आप खुदा का शुक्र अदा करें कि मैं बर वक्त पहुंच गया हूँ, वरना ये कुछ भी कर सकता था। अरूसा खौफ के मारे गंग निगाहों से उसे देखे जा रही थी। इंस्पेक्टर कह रहा था, हमें इसकी काफी अरसे से तलाश थी, लेकिन इसके बारे में हमें सबूत नहीं मिल रहा था। उसने 2 दिन कबल एक नौजवान लड़की की इज्जत लूटने के बाद उसे कत्ल किया है। ये नौजवान लड़कियों को शादी का झांसा देकर उनकी इज्जतें लूट लेता है और बाद अज़ा उन्हें कत्ल करके उनकी लाशें गायब कर देता है। उसने सिपाहियों को बुलाया और सिपाही आजर की लाश लेकर चले गए। मुझे अफसोस है कि मुझे ऐसा करना पड़ा, इंस्पेक्टर ने कहा। अगर मैं ऐसा ना करता तो आपने जो भी किया है अच्छा किया है, अरूसा ने कहा। इस जैसे दरिंदे को जीने का कोई हक नहीं है जिससे लड़कियां महफूज ना हो। अगर आप आज ना पहुंचते तो शायद ये मुझे भी कत्ल कर देता। मैं तो खुद निदामत महसूस कर रही हूँ कि ऐसा बदकुमाश और कमीना इंसान मेरा शौहर था। अरूसा ने ठंडा सांस लिया। काश मैंने उस वक्त वालिदैन की बात मान ली होती और ऐशो इशरत की दौलत की तरफ ना भागती, ना ही ऊंची उड़ान उड़ती और ना ही ये दिन देखना पड़ता। वो दोनों पार्क के कोने में बैठे हुए थे। लड़की बोल रही थी और मर्द खामोशी से जमीन को घूरते हुए उसकी बातें तवज्जो से सुन रहा था। लड़की, जिसका नाम अरूसा था, उसकी उम्र 24 और 25 साल के दरमियान थी। खूबसूरत नैन नक्श और भरे भरे जिस्म की मालिक थी। उसके बरअक्स आजर की उम्र 34 साल से किसी तरह भी कम दिखाई न देती थी। उसी लम्हे एक लड़का 2 बोतलें उठाए उनकी जानी बढ़ा
जिसे देखकर अरूसा खामोश हो गई। लड़का बोतलें देकर वापस मुड़ा तो चंद लम्हों के बाद अरूसा दोबारा बोली, अब तुमने फैसला आज ही करना है कि तुम कब मेरे वालिदैन से मिल रहे हो। मैं तुम्हें बता चुकी हूँ कि मेरे वालिदैन मुझ पर काफी दबाव डाल रहे हैं कि मैं अपने कजन यासिर से शादी कर लूं। आजर, क्या तुम्हें मुझसे मोहब्बत नहीं है? बिल्कुल है अरूसा। आजर ने मोहब्बत पाश नजरों से उसकी तरफ देखते हुए कहा, मैं तो तुमसे इतनी शदीद मोहब्बत करता हूँ कि तुम्हारे बगैर जीने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। मगर क्या? अरूसा जल्दी से बोली, बात पूरी करो। अरूसा, अजहर उसका हाथ पकड़कर बोला, कहीं मेरी उम्र ना आड़े आ जाए। कुछ भी नहीं होता अजहर, अरूसा ने कहा, शादी मैंने करनी है। मैं बालिग हूँ, आकिल हूँ, अच्छा बुरा सब जानती हूँ, और वैसे भी मोहब्बत में उम्र नहीं देखी जाती। मुझे यकीन है मेरे वालिदैन मेरी पसंद को हरगिज नजरअंदाज नहीं करेंगे। आमिर ने उसे बोतल उठाने का इशारा किया और खुद भी बोतल उठाते हुए बोला, ठीक है, मैं कल ही तुम्हारे वालिदैन से मिलता हूँ, लेकिन तुम अपने वालिदैन को मेरे बारे में बता देना कि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं अकेला रहता हूँ। वो मैं बता दूंगी। अरूसा ने अस्बाती गर्दन हिलाई। कल ठीक शाम 6 बजे आ जाना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। बोतलें पीने के बाद वो उठे और बाहर के दरवाजे की तरफ बढ़ गए। आजर ने कैबिन पर बोतलों के पैसे अदा किए और फिर पार्क से बाहर निकलकर एक तरफ खड़ी कार में बैठ गए। आजर ने अरूसा को उसके घर के करीब ड्रॉप किया और खुद आगे बढ़ गया। उसके जाते ही अरूसा लंबे लंबे कदम उठाती हुई अपने घर की तरफ जाने वाली गली की तरफ चल पड़ी। अरूसा एक मतवस्त तबके से ताल्लुक रखती थी। वो कुल 5 बहन भाई थे। इससे एक बड़ा भाई था जो कि शादीशुदा था। बाकी 2 बहनें और भाई इससे छोटे थे। उसके वालिद किसी स्कूल में टीचर थे। बड़ा भाई भी रेलवे में मुलाजिम था। उसके बहुत सारे ख्वाब थे। वो चाहती थी कि उसकी शादी किसी अमीरजादे से हो, नौकर चाकर हो, शानदार गाड़ी हो, हत्ता कि किसी भी चीज की कमी ना हो। लेकिन उसके लिए किसी भी अमीर घराने से रिश्ता ना आया था। आखिर उसके वालिदैन ने बाहमी रजामंदी से उसकी जुबानी मंगनी उसके चचा जाद यासिर से कर दी थी। यासिर उसे एक आंख ना भाता था और अरूसा ने इस रिश्ते को दिल से कबूल ना किया था। यासिर कबूल सूरत था। वो किसी फैक्ट्री में मुलाजिम था। उसकी तनख्वाह 3000 रुपए थी और अरूसा जानती थी कि 3000 में घर का गुजारा भी बहुत मुश्किल से होता है। अरूसा और आजर की मुलाकात इत्तफाकिया ही करार दी जा सकती थी। एक दिन अरूसा अपनी किसी सहेली का नंबर डायल कर रही थी कि रॉन्ग नंबर मिल गया था और दूसरी जानिब बात करने वाला आजर था। बस उसी दिन से ही उनके दरमियान शनासाई पैदा हो गई थी। ये सिलसिला तकरीबन 7 माह तक चला था और दोनों ही टेलीफोन पर एक दूसरे से इजहार मोहब्बत कर बैठे थे। फिर जब आजर ने मिलने पर इसरार किया तो अरूसा भी रह ना सकी। वो भी आजर को देखना चाहती थी और फिर दोनों ने शहर के गुंजान आबाद इलाके में वाक़े पार्क में मुलाकात की और यूं ये सिलसिला चल निकला। आजर ने अरूसा को बताया था कि उसका इस दुनिया में कोई नहीं है, वो अकेला रहता है, उसने अभी तक शादी नहीं की है। जब उसने अरूसा को अपने घर चलने की दावत दी तो अरूसा रद्द ना कर सकी। अरूसा जब आजर के घर गई तो उसकी आंखें हैरत के मारे फटने लगी। शानदार घर था, नौकर चाकर, हत्ता की जिंदगी की हर सहूलत मैसर थी। वो सोचने लगी कि आजर ही उसके ख्वाबों का शहजादा है और उससे शादी करके वो सारी जिंदगी खुश रह सकती है। दूसरी तरफ जब अरूसा के वालिदैन ने अरूसा पर दबाव बढ़ाया तो उसने यासिर से शादी करने से साफ इनकार कर दिया। ये तुम क्या कह रही हो अरूसा? उसकी माँ ने हैरत से कहा। मैं दुरुस्त कह रही हूँ अम्मी, अरूसा ने फैसला कुन लहजे में कहा था। मैं यासिर से हरगिज शादी नहीं करूंगी, ये मेरा आखिरी फैसला है। मगर अरूसा, तुम्हारा बाप अपने भाई को जुबान दे चुका है, उसकी माँ ने कहा। ये मंगनी जुबानी तय हुई है, अरूसा ने कहा, इसकी बाकायदा रस्म अदा नहीं हुई। आप इन्हें मेरी तरफ से जवाब दे दे। तो फिर तुम किससे शादी करोगी? उसकी माँ ने पूछा। अरूसा, तुम्हारी दूसरी बहनें भी जवान हो रही हैं, उनकी भी शादी करनी है। आज तुम अपनी मनमानी कर रही हो, कल वो भी ऐसा ही करेंगी। अम्मी, मैं कुछ नहीं जानती, मैं शादी करूंगी तो आजर से, वरना नहीं, उसने फैसला कुन लहजे में कहा। आजर? उसकी माँ हैरानगी से बोली। ये आजर कौन है? अरूसा ने आजर के बारे में अपनी माँ को बता दिया। मैं आपको बहुत जल्द आजर से मिलवा दूंगी। और फिर वो दिन भी आ गया जिस दिन आजर अरूसा के वालिदैन से मिलने उनके घर आया।
आजर की उम्र देखकर ही अरूसा का बाप ठटक गया था। उसकी और अरूसा की उम्र में जमीन आसमान का फर्क था। आजर ने अरूसा के वालदैन को बता दिया था कि उसके वालदैन एक हादसे में जान बहक हो चुके हैं। वो अपने वालदैन का इकलौता बेटा था, अब उसका कोई भी नहीं है। आजर जब वहां से रुखसत हो गया तो उसकी माँ ने अरूसा से कहा, अरूसा, बेशक आजर अच्छा है, लेकिन उसकी और तुम्हारी उम्र में बहुत फर्क है। क्या तुम उस शख्स के साथ खुश रह सकोगी जो उम्र में तुमसे 8-9 साल बड़ा हो? बेटी, ऐसी शादियां हरगिज कामयाब नहीं होती। मेरी अभी भी राय है कि तुम मेरी बात मान लो। नहीं अम्मी, मैं फैसला कर चुकी हूँ, अरूसा ने कहा। और वैसे भी दुनिया में लाखों ऐसी शादियां हो चुकी हैं जिनमें या तो लड़की लड़के से बड़ी होती है या फिर लड़का लड़की से बड़ा होता है। इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अरूसा के वालिद ने अपने भाई को अरूसा की तरफ से जवाब दे दिया था, जिसकी वजह से वो अपने भाई से नाराज हो गया था। चंद दिनों बाद अरूसा और आजर की खामोशी से शादी हो गई। आजर की तरफ से कोई भी शरीक ना हुआ था। आजर से शादी करके अरूसा बहुत खुश थी। उसकी ख्वाहिश पूरी हो गई थी। अब वो बहुत बड़े घर की मालकिन बन चुकी थी। उसकी तमाम ख्वाहिशें आजर पूरी कर रहा था। वो रोजाना शाम को कार में बैठकर घूमने जाते और रात गए तक उनकी वापसी होती। उनकी शादी को 2 माह हो चुके थे। अरूसा आजर के साथ बहुत खुश थी। अरूसा का जो ख्वाब था वो आहिस्ता आहिस्ता पूरा होता जा रहा था। उसे जिंदगी की हर वो सहूलत मिल गई थी जिसकी वो ख्वाहिशमंद थी। वो रोजाना ही शाम को घूमने बाहर निकल जाते थे। उस दिन वो घर में अकेली थी। आजर दफ्तर गया हुआ था। वो अपने कमरे में बैठी हुई थी कि साथ रखे हुए फोन की घंटी बज उठी। अरूसा समझी कि शायद आजर का फोन हो। उसने फोन का रिसीवर उठा लिया। हेलो, उसने कहा, कौन है? अरूसा, मैं आजर बोल रहा हूँ। दूसरी तरफ से आजर ही था। आजर, तुम? अरूसा खुशी से बोली, मुझे यकीन था कि ये तुम ही होंगे। मैंने तुम्हें इसलिए फोन किया है कि मैं आज रात घर न आ सकूंगा। आजर ने कहा, तुम रात के खाने पर मेरा इंतजार मत करना। खैरियत? अरूसा चौंक पड़ी। क्या कहीं जा रहे हो? भाई, मैं लाहौर जा रहा हूँ कारोबारी सिलसिले में। आजर ने कहा, कल शाम तक आ जाऊंगा। ओके, अपना ख्याल रखना। उसके साथ ही राब्ता मुनक़ता हो गया। अरूसा ने ढीले अंदाज में रिसीवर रखा और सोचने लगी कि आजर को बैठे बिठाए लाहौर की क्या सूझी है। खैर, वो जानती थी कि कारोबार के सिलसिले में उसका दूसरे शहरों में आना जाना लगा रहता था। दूसरे दिन रात 8 बजे के करीब आजर वापिस आया। सफर कैसा रहा? अरूसा ने पूछा। आजर चौंक पड़ा। हाँ, सफर अच्छा रहा। तुम सुनाओ, मेरे बगैर उदास तो नहीं हुई थी? हुई तो थी, अरूसा ने कहा। खैर, अब तो आप आ गए हैं, मैं खाना लगवाती हूँ। वो उठी। सुनो, मैं खाना खाकर आ रहा हूँ, आजर ने कहा। तुम खाना चाहो तो खा लो, मैं काफी थकावट महसूस कर रहा हूँ, इसलिए आराम करना चाहता हूँ। इतना कहकर आजर उठा और बेडरूम में चला गया। अरूसा हैरत से उसे जाते देखती रह गई। उसे हैरत हो रही थी कि आजर को क्या हो गया है। आजर तो उसके बगैर रात का खाना भी ना खाता था, लेकिन आज इससे आगे वो सोच ना सकी और वहीं बैठ गई। उसकी भूख भी खत्म हो चुकी थी। 2 दिन के बाद आजर को फिर किसी जरूरी काम के सिलसिले में लाहौर जाना पड़ा। अरूसा ने शाम को अकेले ही बाहर जाने का फैसला किया। कुछ बाजार से खरीदारी करना चाहती थी, चुनाचे उसने कार निकाली और बाजार की तरफ बढ़ गई। बाजार से खरीदारी करके वो वापस घर की तरफ आ रही थी कि अचानक उसकी नजर आजर और किसी नामालूम लड़की पर पड़ी। वो दोनों एक होटल से निकल रहे थे। अरूसा ने यकदम कार रोकी और उन्हें देखने लगी। पहले पहल तो उसे वहम हुआ कि उसकी आंखें धोखा खा रही हैं। उसने कार पीछे की तरफ की और उसकी तरफ देखा। वो वाकई आजर था। वो दोनों कार में सवार हुए और कार आगे बढ़ गई। आजर तो लाहौर गया था, ये अचानक उसकी वापसी कैसे हो गई? और वो नामालूम लड़की के साथ एक कोठी में चला गया था। अरूसा घर आ गई। सदमे से उसका दिमाग फटा जा रहा था। वो सोच भी ना सकती थी कि आजर उसे धोखा देकर किसी अजनबी लड़की के साथ यूं घूम सकता है। ख्यालात की यलगार उसके दिमाग पर हमला आवर हो रही थी। अगले ही लम्हे उसने इन वसवसों को दिमाग से निकाला। नहीं, आजर ऐसा नहीं हो सकता, वो बुड़बुड़ाई।
सारी रात वो सोचती रही कि आखिर वो लड़की कौन हो सकती है जो आज़र के साथ थी। रात ठीक से वो सो भी ना सकी। सुबह जब उठी तो उसके सर में हल्का हल्का सा दर्द हो रहा था। उसने सर दर्द की गोली खाई और सो गई। दोपहर को उठी तो सर का दर्द कदरे कम था। नहाने से उसकी सारी सुस्ती दूर हो गई। अभी वो बेडरूम में आकर बैठी ही थी कि उसी वक्त फोन की घंटी बज उठी। उसने कदरे बेजारी के साथ रिसीवर उठाया। हेलो, कौन? उसने पूछा। आप मिसेज अरोसा आजर बात कर रही हैं? दूसरी तरफ से अजनबी आवाज आई। जी, मैं मिसेज अरोसा आजर बात कर रही हूँ। अरोसा चौंक कर बोली, आप कौन हैं? आप मुझे अपना एक हमदर्द ही समझिए। आवाज आई, मैंने आपको इसलिए फोन किया है कि अगर आप चाहती हैं कि आपका शोहर जिंदा रहे तो आप अपने शोहर को समझाएं कि वो फरहाना का पीछा छोड़ दे। क्या मतलब? आप कहना क्या चाहते हैं? मिसेस अरूसा हैरानगी से बोली। मिसेस अरूसा आजर, आप बहुत भोली हैं। अजनबी ने कहा। आप भी इस फ्राडिये के चक्कर में फंस गई और उसके साथ शादी कर ली। आप नहीं जानती कि आजर का किरदार कैसा है। मैं अगर आपको बताऊं तो शायद आपको मेरी बात पर यकीन ना आए, मगर ये हकीकत है कि वो इंतहाई आयाश और आवारा किस्म का आदमी है। ना जाने कितनी लड़कियों को अपनी बिस्तर की जीनत बना चुका है। ना जाने कितनी लड़कियों की वो इज्जतों से खेल चुका है। आपको शायद ये भी मालूम ना होगा कि वो पहले से शादीशुदा है। क्या? अरूसा को अपनी समात पर यकीन ना आया। मैं दुरुस्त कह रहा हूँ। अजनबी चंद लम्हे बाद बोला। उसने एक मासूम लड़की को अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाया था। वो लड़की बहुत गरीब थी। उसका ख्याल था कि वो आजर से शादी करके अपनी जिंदगी हसीन बना लेगी। आजर उसकी इज्जत से खेल चुका था और उससे शादी नहीं करना चाहता था। लेकिन जब रिफत ने उसे धमकी दी कि उसने उसके साथ शादी ना की तो वो उसके बारे में पुलिस को बता देगी, और पुलिस के डर से आजर ने उससे शादी कर ली। मगर इतना कहकर अजनबी खामोश हो गया। मगर क्या? हेलो, अरूसा तेज आवाज में बोली। हेलो, हेलो। मगर उस लड़की का अंजाम बहुत भयानक हुआ। अजनबी खामोशी के बाद दोबारा बोला। आजर ने शादी के कुछ ही अरसे बाद रिफत को कहीं गायब कर दिया। मेरा ख्याल है कि उसने यकीनन उसे कत्ल कर दिया होगा। रिफत को आजर के बारे में बाद में मालूम हो गया था कि आमिर एक अयाश और बदकुमाश इंसान है। जब उसने आजर को इन कामों से मना किया तो आजर ने ना जाने उस बेचारी के साथ क्या सलूक किया। अरूसा ये सब कुछ सुनकर होले होले कांप रही थी। उसने सोफे का सहारा ले रखा था। वो अपने हवास खोती जा रही थी। अगर उसने सोफे का सहारा ना ले रखा होता तो यकीनन बेहोश होकर गिर जाती। मिसेस अरूसा आजर, मैं अगर चाहूँ तो आपके शोहर को ठिकाने लगा सकता हूँ। अजनबी दोबारा बोला। मगर मैं नहीं चाहता कि मैं अपने हाथ खून से रंगूं। आप इसे समझाइए कि वो फरहाना का ख्वाबो ख्याल छोड़ दे, वरना उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। उसके साथ ही राब्ता कट गया। रिसीवर अरूसा के हाथ से छूटकर नीचे लटक गया। उसने क्या सोचा था और क्या हो गया था, उसे मालूम ना था कि आजर इंसान नहीं दरिंदा है, कई लड़कियों की इज्जतों का लुटेरा है। अब उसे एहसास हो रहा था कि उसने सुहाने ख्वाबों की खातिर काफी ऊंची परवास की थी। शानदार घर, कार और जिंदगी की हर सहूलत हासिल करने की खातिर उसने अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी थी। शाम को जब आजर घर आया तो उस वक्त वो कुछ अच्छे मूड में था। हेलो अरूसा, वो चहक कर बोला। मेरे बगैर यकीनन तुम उदास रही होगी, ये तुम्हारी शक्ल से ही लग रहा है। अरूसा कोई जवाब देने की बजाय सिर्फ उसे घूरे जा रही थी। वो चाहती थी कि वो आजर पर ये जाहिर न होने दे कि उसे उसके बारे में इल्म हो चुका है। उसने कुछ और ही फैसला किया था। उसे अपनी तरफ यूं घूरता देखकर आमिर ठटका और हैरत से बोला, खैरियत है अरूसा, तुम मुझे यूं क्यों देख रही हो? 2 दिन के बाद मुलाकात हो रही है, अरूसा ने कहा, इसलिए मेरा दिल चाह रहा है कि मैं तुम्हें देखती रहूं। तुम सुनाओ, लाहौर का टूर कैसा रहा? जबरदस्त, आजर खुशी से बोला। मेरी कंपनी का बनाया हुआ माल लाहौर में काफी फरोख्त हो रहा है। इसी खुशी में मैं आज तुम्हें आइसक्रीम खिलाने ले चलूंगा। चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, मेरा जी नहीं जा रहा। अरूसा ने बहाना बनाया। फिर किसी दिन चलेंगे। अरे खैरियत तो है अरूसा?
आजर परेशान हो गया। ये बैठे बिठाए तुम्हें क्या हो गया है? बस सुबह से सर में हल्का सा दर्द है, अरूसा ने कहा। मैंने दवाई खा ली है, जल्दी ठीक हो जाएगा, तुम परेशान मत हो। आजर ने कंधे उचकाए जबकि अरूसा खामोशी से उठकर किचन में आ गई और रात का खाना बनाने लगी। खाना खाने के बाद आजर 1 घंटे के लिए बाहर चला गया था। उसकी वापसी जब हुई तो अरूसा सो रही थी। आजर अरूसा के पहलू में लेट गया। सुबह आजर 9 बजे तैयार होकर दफ्तर जाने लगा तो उसी वक्त फोन की घंटी बज उठी। उसने रिसीवर उठा लिया। आजर बोल रहा हूँ, आजर ने कहा। सुनो मिस्टर आजर, दूसरी तरफ से वही अजनबी आवाज आई। मैंने तुम्हें इसलिए फोन किया है कि अगर तुमने दोबारा फरहाना से मिलने की कोशिश की तो तुम्हारा इंजाम बहुत भयानक होगा। उसके साथ ही राब्ता कट गया जबकि आजर हैरत और परेशानी के मिले जुले तासुरात लिए रिसीवर को घूरता रह गया। किसका फोन था? अरूसा ने कहा। पता नहीं, कट गया था, आजर ने कहा और रिसीवर रखकर वो अपनी कार की तरफ बढ़ गया।